Good evening, everyone. I, Naman Mehrotra, welcome you all on behalf of Team InnoGeeks to our sixth session in the series of Weekend Hour. Today we have with our own Akash Bajpai sir. He needs no special introduction, but for those who don't know him yet, he is a winner at NASA Space Challenge, grabbed first position in Lewis Campus Hackathon, and also a winner in 10 plus other hackathons. I hope you all are ready with your laptops, as it is going to be a great session with everyone having their own AR filters at the end. With that said, let us start today's weekend hour on getting started with AR filters. Over to you, sir. Thanks a lot, Naman. Thanks a lot for such a formal introduction. It's great to host open session for everyone. I generally try to interact with all of you. We'll start with this session, and this session, the first half will be little sort of formal things where we'll be knowing about augmented reality lenses and things. And the second half would be hands-on session where we'll try to implement some Snapchat lenses and some Instagram lenses as well. So let's start. Rohan, can you stop presenting, please? Yeah, thanks. Just a second. Great. I hope my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Sure. So once again, welcome to this session. We'll be hosting a session on getting started with AR filters. So before anything related to augmented reality, I try to sum up what augmented reality and virtual reality these things are. So humans are blessed with two major powers. The first thing is imagination, and the second is visualization. Imagination means हम कुछ सोच सकते हैं, हम कुछ नई चीजें अपने दिमाग में ला सकते हैं. Visualization is कि हम क्या चीजें देख सकते हैं, हम किन चीजों को अपनी रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं. And for example, imaginations की कुछ properties इस तरह से हैं कि imagination is limitless. You can think anything. You can think of an elephant floating in air and anything. There are no rules in imagination. There are no physics rules. There are no chemistry rules in imagination. You can think of anything. Imagination is innovative. Innovation comes from imagination. You think of something which is different, which is not real, and then you try to implement that, and that's where innovation comes from. Imagination is tempting. We all love to imagine, to rest on our sofas and just think about what we can do. Imagination is productive as well. So once we imagine things, once we try to sum up what all can be done, we create some new things. Visualization is realistic. So our imagination was not realistic. It was just something that we think of. Visualization is realistic. That is the real world. It has some rules applied to it. So you cannot see an elephant floating in air on the earth, at least. So there are some physics rules, there are some chemistry rules that are applied to visualization. Visualization is useful. The main things that we do are through visualization only. Visualization is interactive. Interaction means something that you can touch, feel, and smell, and some things like that, which initiates some senses in us. And it's three-dimensional, so it's all around us. So when we combine imagination and visualization, when these two things are combined, then comes as extended reality. Extended reality is an umbrella which covers all three: augmented reality, virtual reality, and mixed reality. So I think a lot of the audience knows about what is augmented reality. So in short, augmented reality is something when you add something to the real world. That is, you do not change the real world completely, but you add something. So जो भी मेरे आसपास है, मैं उन चीजों में changes नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें कुछ नई चीज ला रहा हूँ. That is augmented reality. What is virtual reality? When we completely change our surrounding, जो हमारे आसपास है उसको हम completely change कर दें, हम खुद को कहीं और transport कर दें, या फिर ऐसी जगह पहुंचा दें जो actually इस real world का हिस्सा भी नहीं है, वो होता है हमारा virtual reality. तो टाइप्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी जल्दी से कवर करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को बहुत ज्यादा लंबा ना रखें, हम हैंड्स ऑन वाले पार्ट को ज्यादा रहे. मार्कर बेस्ड एआर होता है जहां पर हम किसी एक मार्कर को, फॉर एग्जांपल किसी एक इमेज को या किसी के फेस को या हैंड को, उसको टारगेट करते हैं और उसके ऊपर कोई चीज लगाते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे लेंसेज होते हैं.
जिनमें हम अपने फेस को ट्रैक करते हैं। देन वी हैव मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि हम कोई मार्कर का यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम ग्राउंड प्लेन को डिटेक्ट कर रहे हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे एप्पल का AR किट है, गूगल का AR कोर है, और बहुत सारे AR हेडसेट्स जो अभी फ्यूचरिस्टिक आ रहे हैं वो भी मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल है। देन इज लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी हम किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कुछ ऑगमेंट कर रहे हैं। जैसे कि उसका जो छोटा एग्जांपल है वो एक पोकेमॉन गो गेम है हमारा, जो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक पोकेमॉन को स्पॉन करता है। और भी बहुत सारे हैं, गूगल मैप AR है जो कि किसी शॉप के ऊपर उसका नाम लिख के देता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है। प्रोजेक्शन बेस्ड AR है जहाँ पे हम एक प्रोजेक्टर से किसी दीवार पे प्रोजेक्शंस करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि किसी हिस्टोरिक बिल्डिंग में गए हो तो वहाँ पे नाइट शोज होते हैं, और नाइट शोज में वो प्रोजेक्टर से बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल से प्रोजेक्शंस करते हैं, वो प्रोजेक्शन बेस्ड AR होता है। किन 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 प्लेटफॉर्म्स पे हम ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपमेंट करते हैं? जो मैं प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट या लेंस डेवलपमेंट के लिए है, वेब AR से रिलेटेड नहीं। वेब AR के लिए कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। यूनिटी सबसे फेमस ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड रियल टाइम 3D डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। मोस्ट वाइडली यूज का मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अमंग इट्स कंपटीटर्स। रियल टाइम का मतलब जो भी चेंजेस तुम करते हो उनको रियल टाइम में देख सकते हो सामने। और 3D डेवलपमेंट है यानी तुम उसमें 3D वर्ल्ड क्रिएट करते हो। यूनिटी में हम इन 5 मेजर GKs को यूज करते हैं। अगर किसी को बात रेफरेंस के लिए लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गूगल AR कोर है जो गूगल का है, और एप्पल का AR किट है। इन दोनों के साथ कुछ स्पेसिफिक है, यानी हम कुछ ही स्मार्टफोन्स में नहीं यूज कर सकते हैं, लिमिटेड डिवाइसेज हैं। देन PTC एक कंपनी है, उसका व्यूपोरिया SDK है, विकिट्यूड SDK है, और इन सब में से जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है वो है इजी AR, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर डेवलपर्स, और आप अपनी एप्स को पब्लिश भी कर सकते हैं इससे। कमिंग टू जिन चीजों पे हम आज काम करने वाले हैं, सबसे पहला है स्पार्क AR। स्पार्क AR फेसबुक का एक ऐप है। स्पार्क AR और लेंस स्टूडियो जो इसके बाद हम देखेंगे, इनमें कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको कोई SDK पहले से होनी चाहिए। स्पार्क AR किस लिए यूज करते हैं? इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो हम लेंसेज यूज करते हैं उनको क्रिएट करने के लिए स्पार्क AR का यूज किया जाता है। स्पार्क AR के कुछ जो मेन फीचर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं वो है फेस ट्रैकिंग, यानी हम एक से ज्यादा फेसेस को ट्रैक कर सकते हैं और उनके ऊपर कुछ ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। हैंड ट्रैकिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेगमेंटेशन कर सकते हैं, जो आजकल वीडियो लेक्चर्स में बहुत हो रहा है कि आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। इमेज ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी आपने एक इमेज दे दी उसको और उस इमेज को ट्रैक करेगा। एंड ग्राउंड ट्रैकिंग जो कि बेसिक AR होता है, यानी आप जमीन के ऊपर कोई चीज रख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ज्यादा हिंदी में रखूं ताकि सबको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट इज लेंस स्टूडियो। लेंस स्टूडियो इज फॉर स्नैपचैट। स्नैपचैट के लिए जितने भी लेंसेज क्रिएट होते हैं वो लेंस स्टूडियो से होते हैं। इसकी लिस्ट अभी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है जो इसमें फीचर्स हैं, और बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू स्पार्क AR। लेंस स्टूडियो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें अभी मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करने और उनको ट्रैक करने की फीचर्स इंक्लूड किए हैं। यानी अब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जो मशीन लर्निंग का बहुत बेसिक काम होता है। हम हैंड गेस्चर डिटेक्शन और फेस लैंडमार्क्स, फुट ट्रैकिंग, आईबॉल ट्रैकिंग, ये सारे फीचर्स जो हैं वो लेंस स्टूडियो में कर सकते हैं। इन सबको अभी हम देखेंगे भी। कुछ छोटे से वीडियोस जो मैं तुम्हें आप लोग को दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि AR में एक्चुअली क्या काम होते हैं। तो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के लिए हो सकता है, जैसे नाइकी अपने शूज को विजुअलाइज करने के लिए AR का यूज करता है। गेम्स में यूज होता है VR का। फॉर एग्जांपल ये बीट सेबर्स गेम है जो आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत फेमस है। नेक्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी का जो फ्यूचर है, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस। इसमें आपको किसी स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को देखने के लिए इन द रियल वर्ल्ड। विद द हेल्प ऑफ दीज क्लासेस आप चीजों को रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं। हालांकि बहुत कॉस्टली है और अंडर डेवलपमेंट है, अभी सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डेवलपर्स के लिए अवेलेबल है। ये एक सीन तुम लोगों ने शायद देखा होगा, एवेंजर्स मूवी का है। जब आयरन मैन की डेथ हो जाती है तो उसने कुछ रिकॉर्ड कर रखा होता है अपना एक लास्ट मैसेज जो उसके हेलमेट से पे होता है। ये प्रोजेक्शन बेस्ड AR का एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे एक प्रोजेक्शन के थ्रू हम ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। ज्यादा देर नहीं चलाते इसको। ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम एक बहुत फेमस हुआ था ये ऐप, इसका नाम था नमो नोट ऐप। और इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये फेक नोट पकड़ने के लिए एप्लीकेशन है। इमेज ट्रैकिंग बेस्ड बहुत ही बेसिक AR का एप्लीकेशन था, जिसमें आप जो है इमेज नोट की इमेज डाल रखी थी उस डेवलपर ने, और आप जब उसको स्कैन करो तो उसपे मोदी जी का एक भाषण प्ले होता था।
तो लोगों को लगता था कि इससे हम फेक नोट ट्रैक कर सकते हैं, जब नई नई 2000 की नोट आई थी। हालांकि ये कुछ नहीं था, सिर्फ AR का एग्जाम्पल था और सिर्फ फेक नोट ट्रैक नहीं होती है। नेक्स्ट पोस्टर AR, इनोगिक्स के रवि है, उसने हमारे लिए जो रिक्रूटमेंट हुआ था लास्ट ईयर उसके लिए बनाया था। यहाँ पे आप पोस्टर्स के ऊपर वीडियोस को ऑगमेंट कर सकते हैं इन सेंस। ये हमने दूसरे डिफरेंट डोमेन्स के एग्जाम्पल को बताने के लिए किया था। सेकेंड ईयर वाले बैच को शायद पता होगा, उन लोग के जी ब्लॉक और बाकी जगहों पे पोस्टर्स लगे थे। सो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे AR और VR के हैं। आई थिंक फैंटेसाइज तुम लोग हो गए होंगे काफी ज्यादा। धीरे धीरे हम चीजों की उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। XR को फ्यूचर या ऑगमेंटेड रियलिटी को फ्यूचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे स्मार्टफोन्स को या ज्यादातर कंप्यूटेशन डिवाइसेस को जिनमें स्क्रीन इन्वॉल्व होती है उन्हें रिप्लेस करने वाला है। इस तरह से रिप्लेस करने वाला है कि तुम्हें स्मार्टफोन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपनी आंखों के सामने वो चीजें विजुअलाइज होंगी, तुम्हारे सामने वो चीजें बन के आएंगी एंड तुम्हें 1000 डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अपने जो रियल वर्ल्ड है उसको ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो बिफोर वी स्टार्ट, आई थिंक AR से रिलेटेड सेशन है, तो इतना नॉर्मल सा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई ट्राई टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। एक छोटे से एग्जाम्पल दिखाते हैं तुम लोग को। जस्ट अ सेकेंड। या तो जो लोग अभी मीट ओपन करके बैठे हैं उन्हें दिख रहा होगा कि स्नैपचैट का बहुत फेमस फिल्टर है जो मैंने अपने ऐप पर अप्लाई कर रखा है। एनिमे फिल्टर बहुत ज्यादा इस वक्त यूज हो रहा था, लोग खुद को एनिमे में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। विजिबल है, एक बार कोई कंफर्म कर दे, मैंने पहली बार ट्राई किया है। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे ही और भी फिल्टर्स हैं जो तुम वीडियो कॉल से भी यूज कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें इसकी पावर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो फिल्टर मैं जो करेंटली यूज कर रहा हूँ इसकी आई ट्रैकिंग बहुत अच्छी है। सो इफ मैं अगर एक आईब्रो भी रेस करता हूँ तो वो उसको रिएक्ट करता है, मैं अगर एक आई क्लोज करता हूँ तो ये उसको भी रिएक्ट करता है। सो हमारे कंप्यूटर विजन इंडस्ट्री से जो रिलेटेड पीपल होते हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स को पावर करते हैं। हम जो यूज करने वाले हैं, हम वो कंप्यूटर विजन वाली चीजें नहीं काम करने वाले हैं। हमारा जो काम होगा वो रिलेटेड टू सिर्फ क्रिएटिव वर्क्स होगा, यानी हम सिर्फ चीजों को क्रिएट करेंगे। हम इसकी ट्रैकिंग के पार्ट में नहीं जाएंगे कि चीजों को ट्रैक कैसे करना है। जो चीजें ट्रैक हमें मिल रही हैं हम उनके ऊपर ऑगमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक वापस एनिमे वाले लुक पे चलते हैं। ग्रेट, तो हम सेशन शुरू करते हैं आज का हैंड्स ऑन सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेंस स्टूडियो से, बट उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लगभग जितने भी तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं उनका लुक लगभग एक जैसा ही होता है। तो सबसे पहले उनके फीचर समझ लेते हैं ताकि तुम्हें जब मैं उस पर काम करूं तो तुम्हें इतना कंफ्यूजन ना हो उससे रिलेटेड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो जो मैंने प्लेटफॉर्म भी करेंटली यूज दिखा रहा हूँ आप लोग को स्क्रीन शेयर में, वो यूनिटी है। बट ये सिर्फ यूनिटी तक लिमिटेड नहीं है, सेम ही फीचर जो होंगे वो तुम्हें लेंस स्टूडियो में दिखेंगे, बस थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज हो सकता है। और सेम ही फीचर्स तुम्हें दिखेंगे स्पार्क एआर में, बस नाम वगैरह चेंज हो सकता है। सबसे पहला जो सेक्शन तुम्हें जनरली दिखेगा उसे हम बोलते हैं हायरार्की सेक्शन। हायरार्की सेक्शन में जो जो तुम चीजों को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुमने अपने लेंस में एक इमेज यूज की है या एक फेस ट्रैकर यूज किया है, क्या होता है फेस ट्रैकर वगैरह देखेंगे। तो हो सकता है तुमने एक इमेज यूज की हो, कोई 3D मॉडल यूज किया हो, कोई फेस ट्रैकर यूज किया हो, तो वो सारे तुम्हें हायरार्की सेक्शन में लिस्टेड दिखेंगे, वहां पे लिस्ट में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास सिर्फ एक मेन कैमरा है और एक डायरेक्शनल लाइट है, जो भी चीजें आती जाएंगी वो उसमें लिस्ट होती जाएंगी। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन का काम क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज तुमने यूज नहीं किए बट तुम जो भी चीजें यूज करने का सोच रहे हो वो तुम लेके आओगे। तो बाहर से तुम कुछ भी विंडोज एक्सप्लोरर से तुम कुछ भी ड्रैग करके लाते हो 3D मॉडल वगैरह, तो तुम सबसे पहले यहाँ ड्रॉप करो। ठीक है, ये हमारा सबसे मेन एरिया है जिसे हम बोलते हैं सीन एरिया। ये एक 3D वर्ल्ड जैसा है, ये पूरी 3D दुनिया है जिसमें तुम चीजों को ऐड करोगे। तो मान लो तुम एक शहर का मैप बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम GTA गेम बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो तुम पूरा मैप जो होगा तुम्हारा वो यहाँ पे दिखेगा। जब तुम गेम ट्राई करने के लिए टेस्ट करोगे, प्ले बटन दबाओगे तो वो यहाँ पे प्ले होगा। ये तुम्हारा सीन एरिया है, यानी यहाँ पे सारी चीजें जो मेन तुम्हें विजुअलाइजेशन वाली जो तुम्हें दिखेंगी वो यहाँ होगी।
जैसे कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर में होता है, यहाँ पे ऊपर हमारा टूल बार है। टूल बार में कुछ स्पेशल टूल्स हैं जिनको हम देखेंगे। जनरल टूल जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर में होते हैं, मूव टूल है, रोटेशन टूल है, स्केल टूल है, यानी चीजों को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। और भी टूल्स हैं जो काम आएंगे तो देखेंगे। ये पार्ट है सेटिंग्स, जैसे होता है जनरली हमारी चीजों में, वैसे ही हमारा इंस्पेक्टर पैनल है। दूसरे ऐप्स में दूसरा नाम होता है, बट जनरली हम इसको इंस्पेक्टर पैनल ही कहते हैं। इसमें से हम चीजों की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो किसी का तुम्हें साइज वगैरह चेंज करना है नंबर्स में, या फिर स्क्रिप्ट लगानी है, स्क्रिप्ट का मतलब कोड्स होते हैं जनरली यहाँ पे, तो वो सब चीजें हम इंस्पेक्टर पैनल में करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हमें एक ओवरव्यू मिल गया है कि कैसे चीजें होती हैं। अब चलते हैं हम लेंस स्टूडियो पे। ठीक, लेंस स्टूडियो मैं पहले से बता देता हूँ, जो मेरा वर्जन जो मैं भी यूज कर रहा हूँ वो अपडेटेड नहीं है। अपडेट मैंने इसलिए नहीं किया है कि कुछ मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स थे इंपॉर्टेंट, ताकि वो कुछ इशू ना हो उनमें, इसलिए मैंने अभी अपडेट नहीं किया है। जैसे ही तुम इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे, बीट लेंस स्टूडियो, बीट स्पार्क, या इनके कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो पहले से तैयार मिलते हैं तुम्हें, तुम उनको यूज कर सकते हो, या उनमें कुछ चेंजेस करके खुद के लेंसेज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एक पेट ट्रैकिंग है, यानी कि तुम्हारे पेट के ऊपर कुछ ऑगमेंटेशन हो जाएंगे। सेगमेंटेशन फिल्टर है, सेगमेंटेशन फिल्टर का काम ये होता है कि तुम्हारे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। हैंड ट्रैकिंग है, बॉडी ट्रैकिंग है। तो ये कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, यानी तुम इनको ओपन करोगे तो प्रोजेक्ट में वो चीजें तुम्हें पहले से बनी बनाई मिल जाएंगी, और तुम उनमें ही चेंजेस कर सकते हो। बट हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे ताकि तुम्हें बेसिक से चीजें समझ में आए। सो लेट्स गो टू न्यू प्रोजेक्ट। इन केस मेरी आवाज कहीं पे कट रही हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, स्क्रीन शेयर में कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। थोड़ा सा स्लो लैपटॉप है, तो bear with me, just a second। मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। जस्ट सेकंड। हाँ, ग्रेट। सो ये हमारा लेंस स्टूडियो का प्लेटफॉर्म है। क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर तुम लोग के हिसाब से लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट्स पैनल है। ऑब्जेक्ट्स पैनल इज वेरी सिमिलर टू हायरार्की। नीचे रिसोर्सेज पैनल है, जो भी चीजें भी हम ड्रैग करके लाएंगे वो हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ये हमारा सीन एरिया है, जहाँ पे हमें, अगर मैं इसको रोटेट करके दिखाऊंगा तो मैं दिख रहा होगा एक पूरा 3D दुनिया जैसी है, जहाँ पे हम चेंजेस करेंगे और लेंस भी बनाएंगे और खुद पे भी ट्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा इंस्पेक्टर पैनल है, जहाँ पे हम सेटिंग्स वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी चीज को ट्रैक करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम फेस ट्रैकिंग करना चाहते हैं, हम किसी के फेस को ट्रैक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पैनल में एक ऐड न्यू बटन है, इफ यू कैन सी लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर, ऐड न्यू बटन पे प्रेस करेंगे एंड देन विल गो टू हेड बाइंडिंग। हेड बाइंडिंग का मतलब है फ्रॉम नेक टू हेयर्स। यहाँ पर अगर हमें कुछ ऑगमेंटेशन करना है तो हेड बाइंडिंग का यूज करते हैं। हेड बाइंडिंग पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने क्लिक किया, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो सीन में हमें एक हेड जैसा 3D मॉडल ऐड हो गया है। और ये हमें सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है कि हम कहाँ पर क्या चीज ऐड करना चाहते हैं। आई होप समझ पा रहे हो कि रेफरेंस के लिए क्या मतलब है, यानी हम इसके ऊपर जो भी चीज ऐड करेंगे वो जो हमें यहाँ पे राइट हैंड पे एक पर्सन का चेहरा दिख रहा है वो उसके ऊपर ऐड होके दिखेगा। चेहरे को हम एक वीडियो से रिप्लेस कर देते हैं। ग्रेट, सो ये चेहरा है हमारा। ठीक है, अब इस पे हम कुछ ऑगमेंटेशन ऐड करते हैं। तो मैंने कुछ पहले से सेव कर रखी थी इमेजेस, जिनको हम यूज करेंगे इसमें। ओके, एक जो मैंने डाउनलोड की थी वो डेविलियर्स की थी, और एक थी टूथ की। तो इन दोनों इमेजेस को हम ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करते हुए ले चलते हैं लेंस स्टूडियो में, और रिसोर्सेज एरिया में ड्रॉप करेंगे। ध्यान देना कहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं भी ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। रिसोर्सेज एरिया में ड्रॉप किया, दोनों इमेजेस ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब इन इमेजेस को हमें ऐड करना है फेस बाइंडिंग पे। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन तुम लोग के लिए रहेगा कि जो इसके साथ फेस ऑक्लूडर है इसको डिलीट कर दो। इसको
इसको डिलीट करने का मतलब ये है कि अगर इस चेहरे के पीछे कुछ भी जाता है तो वो गायब हो जाता है। चलो मैं पहले तुम लोग करके दिखाता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आएगी। हमने ये दोनों इमेजेस अभी ड्रैग की थी, ये डेविल एयर की थी और ये टूथ की थी। तो हम क्या करेंगे, डेविल एयर को यहाँ से ड्रैग करेंगे और हेड बाइंडिंग के ऊपर ड्रॉप करेंगे। आई थिंक कभी कुछ इसको तो ऐड न्यू बटन से जाके करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स में जैसे अभी हमने हेड बाइंडिंग ऐड की थी, वैसे ही ऐड न्यू में जाके हम इमेज ऐड करेंगे। ठीक, तो एक इमेज का आइकन ऐड हो गया है। अब इस इमेज को हम व्यू 3D सीन रखते हैं। यहाँ पे एक व्यू 3D सीन बटन है, क्लिक करते हैं। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैं कह रहा था कि वो इमेज जो है वो कट जाएगी तुम्हारे चेहरे से, जो कि हम चाहते नहीं है। तो हम इस फेस अपलोडर को कर देंगे डिलीट और इस इमेज ऑब्जेक्ट को मूव करके ले आएंगे चेहरे के थोड़ा सा आगे। ये ऊपर टूल बार से मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया और इसको मूव किया है जस्ट फेस के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा ऊपर। देख, अब क्या करते हैं, इस इमेज ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया और अब इंस्पेक्टर पैनल की तरफ चलते हैं। इंस्पेक्टर पैनल ये होता है जो हमारा ऑलमोस्ट सेंटर टू राइट है। यहाँ पे टेक्सचर बटन है, सॉरी टेक्सचर फील्ड है जहाँ पे हमें टेक्सचर देना है जो इस इमेज का है। तो उसको हम उसमें हम इस डेविल हेयर को ड्रैग कर देंगे एंड ये डेविल हेयर यहाँ पे आ गए हैं। अभी बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, चीजों को अभी इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे। एक स्केल टूल लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं गुड, और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं। राइट, अब तो एक बार मैं अपने पर भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। या सो डेविल हेयर्स काम कर रहे हैं। डेविल होम्स सबसे बेसिक काम था, हमने एक फेस ट्रैकिंग इंप्लीमेंट कर लिया, यानी हम फेस को ट्रैक कर रहे हैं और उसके ऊपर कुछ ऑगमेंट भी कर रहे हैं। राइट, एक और चीज कर लेते हैं, इसी इमेज ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी दबा के मैंने डुप्लीकेट किया, यानी एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया और इसको मूव किया नीचे और जो इमेज थी वहां पे हमने इमेज चेंज कर दी है टीथ की। ओके, इसको थोड़ा सा अलाइन करते हैं, स्केल टूल से इसको छोटा करेंगे। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो एक बार बता जरूर देना, मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूँ, हो सकता है मैं फास्ट स्लो हो रहा हूँ। ग्रेट, सो लेट्स ट्राई। ओके, सो बहुत बेसिक चीज हो गई है, हमारा फेस ट्रैक हो रहा है और इसके ऊपर दो इमेजेस लगी हुई हैं। तो हमारा एक बेसिक लेंस जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो तैयार है, हालांकि ये अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ और फीचर्स भी ट्राई करते हैं जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। कुछ भी अगर हमें इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में एक ऐड न्यू बटन है, उसको यूज करते हैं। तो कुछ जो हमारे पास पहले से इम्प्लीमेंटेड फीचर्स हैं उन्हें ट्राई करते हैं। हमारे पास एक आई कलर का फीचर है। आई कलर बहुत ही अच्छी आई ट्रैकिंग हमें देता है इसमें, तो हम आई कलर ऐड करते हैं और आई कलर में सेटिंग्स पैनल में आई कलर का कलर हमने रेड किया और उसकी अल्फा का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कितना डार्क या लाइट दिखेगा वो, तो हमने उसको बंद कर दिया। लेट्स ट्राई। सो अगर तुम लोग को दिख रहा हो कि इसकी आई ट्रैकिंग इतनी अच्छी कि अगर आधी आंख भी बंद करता हूँ तो वो दिख जाता है। ऑफकोर्स मैंने ग्लासेस पहन रखे हैं तो ट्रैकिंग थोड़ी इफेक्ट होती है। और जब स्मार्टफोन पर हम ले जाएंगे कुछ लेंसेज यहाँ पे तुम्हें उतनी अच्छी ट्रैकिंग नहीं दिखेगी, या हो सकता है देखो अगर मैं कोशिश करूँ इधर उधर जाने की तो लेंसेज थोड़ा डिले करेंगे, बट जब तुम उसको स्मार्टफोन पे यानी स्नैपचैट पे ले जाओगे तो ये डिले नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक लेंस हमारा तैयार है। अब हम इसमें कुछ इंटरेक्शन डालना चाहते हैं। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि हम कुछ इनपुट लेना चाहें। फॉर एग्जांपल तुमने कुछ लेंसेज देखे होंगे जिसमें माउथ ओपन करो तो कुछ इंटरेक्शन होता है, वैसी चीजें। तो वो कैसे करेंगे? अब वो करने के लिए चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारे चेहरे पे चीजें लगी हुई हैं इन्हें हम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के लिए क्या है, इनके आगे टिक का बटन है, हेड बाइंडिंग के आगे टिक है, उससे हम अनटिक कर देंगे तो वो चीजें हमारे सामने से हट देंगी। आई कलर अभी भी है क्योंकि वो टिक है, हेड बाइंडिंग के आगे का टिक ऑफ हो गया है तो वो सारी चीजें हट गई। वापस टिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगी। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे कि हम अपनी आईब्रो रेस करने पर हेड बाइंडिंग को ऑन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स का हमें हेल्प लेना पड़ता है। हालांकि स्नैपचैट और स्पार्क यार ने भी हम लोग के लिए इजी कर दिया है कि वो स्क्रिप्ट्स हमें लिखनी नहीं पड़ती हैं,
वो स्क्रिप्ट्स इन्होंने हमें लिखी लिखाई दे दी है ना, बस उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करनी है, यानी उनको हमें सही से यूज करना है। तो अब हम नीचे रिसोर्सेज के ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी तक हम ऑब्जेक्ट्स पे जो ऐड न्यू बटन था उस पर क्लिक कर रहे थे, अब हम रिसोर्सेज के ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्क्रिप्ट, हेल्पर स्क्रिप्ट्स में जाके बिहेवियर। रिपीट कर देता हूँ, रिसोर्सेज में ऐड न्यू बटन पे क्लिक किया हमने एंड देन हेल्पर स्क्रिप्ट में बिहेवियर। बिहेवियर एक स्क्रिप्ट है जो कि हमारे ज्यादातर बिहेवियर्स जो होते हैं उनको हैंडल करती है। बिहेवियर्स का मतलब है ये सारे इंटरैक्शंस, ठीक है। तो इस बिहेवियर स्क्रिप्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे, सेकेंड। हाँ, तो इस बिहेवियर स्क्रिप्ट को ड्रैग करते हैं और हेड बाइंडिंग के ऊपर लगाते हैं। तो हेड बाइंडिंग को सेलेक्ट किया सबसे पहले, देन बिहेवियर स्क्रिप्ट को ड्रैग किया और इंस्पेक्टर पैनल में ड्रॉप कर दिया। कैसे किया फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स पैनल में हेड बाइंडिंग को सेलेक्ट किया, बिहेवियर स्क्रिप्ट को ड्रैग किया और उसको यहाँ इंस्पेक्टर पैनल में जो हमारे सेंटर टू राइट में है उसमें ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो एक स्क्रिप्ट दिख रही होगी तुम्हें और इसमें कुछ खूब सारे बटन दिख रहे हैं 10-12। तो इनको कैसे यूज करना है। सबसे पहला बटन दिख रहा है ट्रिगर का। ट्रिगर का मतलब है कि क्या होना चाहिए। 3 चीजें होंगी। सबसे पहली क्या हुआ, किस चीज के साथ हुआ और करना क्या है। क्या हुआ का मतलब आईब्रो रेज हुई क्या, या माउथ ओपन हुआ, या स्माइल किया, या जो भी चीजें हैं। तो क्या हुआ यानी ट्रिगर हमारा पहली चीज। सेकंड चीज किस चीज के साथ करना है, जो हमें इसका रिस्पॉन्स देना है वो किसके साथ करना है। तो उसमें हमें एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन रिस्पॉन्स में करना क्या है, उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, उसको डिलीट कर देना है, ये सारी चीजें। तो ट्रिगर में सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। बहुत सारे हैं, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे फेस इवेंट। फेस इवेंट का मतलब होता है फेस से रिलेटेड कोई भी चीज है जो चेंजेस हो रहे हैं वो। तो हम फेस इवेंट सेलेक्ट करते हैं ट्रिगर में। इवेंट टाइप में क्या है, देखो फेस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हम चेक कर सकते हैं। माउथ ओपन, माउथ क्लोज, आईब्रो रेस्ड, आईब्रो लोवर्ड और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम क्या करते हैं आईब्रो रेस्ड को सेलेक्ट करते हैं, यानी जो आईब्रो रेस करेंगे अपनी तब कुछ होना चाहिए। फेस इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे लेंस में एक से ज्यादा लोग हैं, यानी मान लो 2 लोग हैं, तो कौन सी फेस को हमें कौन सी फेस के ऊपर ये चीज होनी चाहिए। तो 0 का मतलब एरे की इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3, पहला फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, उसको वैसे ही रखा रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं। रिस्पॉन्स टाइप में हमें क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इसमें से सेट इनेबल्ड लेंगे, यानी हमें किसी चीज को इनेबल करना है जिसको हमने भी डिसेबल किया था अपनी हेड बाइंडिंग को, उसे इनेबल करना है। तो इसमें हम हेड बाइंडिंग को ड्रैग कर देंगे टारगेट में एंड एक्शन में इनेबल है। तो आई थिंक अब ये वर्क करना चाहिए। मेरे कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकंड। सो हेड बाइंडिंग अनचेक है। हाँ, वो हेड बाइंडिंग अनचेक ही होनी है क्योंकि हम उसको आईब्रो रेस होने पर चेक होनी चाहिए। आई थिंक मैंने स्क्रिप्ट इसी के ऊपर लगा दिया। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। गेट, हाँ। सो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जिस चीज को हम हाँ अच्छा, जिसने भी सही बोला था, सही बोला था एक्चुअली। हेड बाइंडिंग डिसेबल्ड है और हमने स्क्रिप्ट भी हेड बाइंडिंग पर ही लगा रखी थी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये नहीं करना था। हम क्या करेंगे, डिलीट कर दें। यहाँ पे थे हमने स्क्रिप्ट ड्रैग अभी नहीं की है, ठीक है। हम ऐड न्यू पे जाएंगे और एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एम्प्टी का मतलब कुछ नहीं, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने ऐड कर लिया जो किसी काम का नहीं है। इस पे हम अपनी स्क्रिप्ट ऐड करेंगे और फिर जो चीजें थी वो पहले वाली जैसी रहेंगी। यानी हमने फेस इवेंट को सिलेक्ट किया, आईब्रो रेस को सिलेक्ट किया, रिस्पॉन्स टाइप में सेट इनेबल्ड सिलेक्ट किया, और सेट इनेबल किसे करना है, हेड बाइंडिंग को, और एक्शन। ओके, ठीक है। लेंस को रिस्टार्ट करते हैं। सो अभी हेड बाइंडिंग ऑफ है एंड जब मैंने आईब्रो रेस किया तो वो ऑन हो जा रही है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, इसी जो हमने अभी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया था उसको डुप्लीकेट करेंगे और अब हम ये करेंगे कि आईब्रो जब रिटर्न टू नॉर्मल हो
तो हमारा जो हेड बाइंडिंग है वो डिसेबल हो जाए। ठीक है, तो जब तक मेरी आईब्रो रेस रहेगी वो ऑन रहेगा, नॉर्मल होने पे ऑफ। गेट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है तो हम ज्यादा बार नहीं करेंगे। चलो वीडियो से भी यूज कर लेते हैं, जस्ट सेकंड, हमारे पास आईब्रो रेसिंग वीडियो था। राइट, तो जैसे तुम लोग को दिख रहा होगा, जैसे जितनी देर तक आईब्रो रेज रह रही है तब तक वो ऑन रह रहा है, यानी इनेबल रह रही है हेड बाइंडिंग हमारी, और इसकी वजह से हमें ये चीजें दिख रही हैं। और जैसे ही आईब्रो लोअर हो रहा है हमारी हेड बाइंडिंग ऑफ हुई जा रही है। ये चीजें तुम आईब्रो के साथ नहीं, और भी जितने ऑप्शन है उनके साथ कर सकते हो। एक एग्जाम्पल दिखा दिया है, बाकी चीजें तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। गेट, ठीक है। अब इसमें कुछ और चेंजेस भी कर लेते हैं ताकि एक फाइनल लेंस कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी दिख जाए। ये तो कुछ फीचर्स हैं जो तुम ऐड करोगे, जो तुम्हारा मेन कंटेंट ऑफ लेंस होगा, बट कुछ एडिशंस भी करने होते हैं, तो कर लेते हैं ताकि वो लेंस और अच्छा दिखे। जो मैंने जहां भी मैंने स्नैपचैट के लेंस सबमिट किए हैं या कहीं भी किए हैं, तो वो चीजें जरूर ऐड की हैं। एक टेक्स्ट ऐड करेंगे हम, और ये चीज तुम्हें दिख रही होगी, ये टेक्स्ट जो है वो न्यू स्क्रीन टेक्स्ट। स्क्रीन टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट में फर्क है, स्क्रीन टेक्स्ट जो है वो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ही हमेशा रहेगा, और जो टेक्स्ट है वो 3D वर्ड में रहता है। ठीक है, तो हमने स्क्रीन टेक्स्ट का यूज किया और ये टेक्स्ट आ गया। अब कुछ टेक्स्ट जो होते हैं वो तुम खुद से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम लिखना चाहो माई लेंस, या जो भी माई लेंस का नाम है वगैरह वगैरह। कुछ टेक्स्ट होते हैं जिन्हें बोलते हैं डायनेमिक टेक्स्ट, तो वो तुम्हारे जो भी पर्सन यूज कर रहा है लेंस उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम, उसकी लोकेशन अभी कहाँ पे है वो, या फिर डेट क्या है आज, या फिर उसका बर्थडे क्या है, तो इन सारी चीजों को भी तुम टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुम टेक्स्ट तुमने ऐड कर लिया है तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, और ये इंस्पेक्टर पैनल में तुम थोड़ा सा नीचे जाओगे, तुम्हें एक डायनेमिक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, और इसके बगल में इंसर्ट बटन है। इंसर्ट करेंगे हम, इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम वेदर ऐड कर सकते हैं, टाइम, टेम्परेचर, मंथ, डिस्प्ले नेम, डे, डेट, शॉर्ट, सिटी, बर्थडे वगैरह वगैरह। तो चलो हम सिटी सेलेक्ट करते हैं, तो टेक्स्ट, तो डिफॉल्ट टेक्स्ट में भी सेंटा मोनिका एडेड है, बट जो भी तुम्हारी करंट सिटी होगी वो लोकेशन के हिसाब से वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी जो भी लेंस यूज कर रहा होगा। तो अगर मैं भी यूज करूंगा तो मेरे में सीतापुर लिख के आ जाएगा, जो भी जहाँ पे तुम लोगों को वहाँ का नाम लिख के आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनमें चेंजेस कर देते हैं। सेकंड, कलर चेंज, लाइन, आउटलाइन वगैरह, तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। बट ये सारी जो होते हैं वो एक एडिशन होते हैं तुम्हारे लेंसेज को और ब्यूटीफाई करने के लिए। कुछ तुम्हारे मेन फीचर्स होते हैं और कुछ चीजें होती है जो तुम सिर्फ ब्यूटीफाई करने के यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने जो आई कलर यूज किया था, हम उसको चेंज कर सकते हैं विद, लेट्स से सिर्फ एक आई पे करना चाहें, दोनों आईज पे करना चाहें, या टेक्सचर भी रख सकते हैं। तो एक टेक्सचर रखते हैं, लेट्स टेक टेक्सचर, इसको यूज करते हैं। सो मैंने इनोविक्स के लोगों का जो इमेज है उसको ड्रैग कर लिया और उसको मैंने टाइप में लगा दिया। ग्रेट, लेट अस सी। ये बहुत ही खराब कैमरा क्वालिटी है मेरी, पहली बात तो। ओके, सो दिख रहा होगा तुम्हें मेरे आईज में इनोविक्स का लोगो आ रहा है। जस्ट अ सेकंड, मैं कैमरा स्विच करता हूँ। कैमरा काफी ज्यादा खराब है। परफेक्ट। सो ये कुछ एडिशंस हैं, और भी चीजें तुम ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ पोस्ट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, ये भी बने बनाए इफेक्ट्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो, जिसमें कुछ नया ऐड नहीं करना। ओल्ड पेपर जैसे मैंने भी ऐड किया, तो बस ब्लैक एंड व्हाइट दे रहा है और ज्यादा डरावना लग रहा है। तो इन सारी चीजों को तुम कर सकते हो। इस तरह से एक फाइनल लेंस बनता है जिसमें तुम हर एक फीचर को तो नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फीचर्स को ऐड करने की कोशिश करते हो। एक प्रॉब्लम मैं तुम लोग को पहले बता देता हूँ, जब भी तुम लेंसेज बनाओगे तो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम जरूर आएगी कि जो लेंसेज होते हैं स्नैपचैट पे आई थिंक 4 MB की लिमिट है। यस, 4 MB का मैक्सिमम लेंस हो सकता है। तो अगर तुम कोई 3D मॉडल वगैरह यूज कर रहे हो तो 4 MB से ज्यादा नहीं हो सकता वो उसका तुम्हारे लेंस का टोटल साइज। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लिमिट वेरिएबल है, बट वेरी करती है अराउंड 5 to 10, लेकिन उसमें ज्यादा है, यानी तुम ज्यादा बड़े लेंसेज रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लेंस स्टूडियो था। काफी सारी चीजें इसमें हमने इम्प्लीमेंट कर दी। एक बार स्पार्क के को भी जल्दी से देख लेते हैं। सो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है अभी स्नैपचैट स्टूडियो से? सर अगर साइज 4 MB से ज्यादा हो तो उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है?
ओके, अगर साइज तुम्हारा 4 MB से ज्यादा है तो उसकी वजह देखो क्या होगी। सबसे पहली मेन वजह होती है, कोई अगर किसी भी तुम लैंग्वेज में हो तो तुम्हारी कोड्स या फिर तुम्हारी स्क्रिप्ट्स कभी स्पेस नहीं खाती। वो 3D मॉडल्स होते हैं या तो इमेजेस होते हैं, राइट। तो 3D मॉडल्स को कम करने के लिए सबसे पहला तरीका, जो सबसे नाइफ तरीका होता है कि तुम ब्लेंडर में उस 3D मॉडल को इंपोर्ट करो और उसके ट्रायंगल्स कम करो। ट्रायंगल्स का मतलब जो तुम अभी जैसे देख रहे हो मेरे सामने, ये फेस का मॉडल खड़ा है, तो ये पूरा मॉडल जो है वो ट्रायंगल से बना हुआ है, ठीक है। जो जितनी भी चीजें वो सारी ट्रायंगल्स हैं, तो जितने ज्यादा कम ट्रायंगल्स ये होंगे उतना उसका मॉडल का साइज कम हो जाएगा। बिकॉज 3D मॉडल्स इन ट्रायंगल्स के जो पॉइंट्स होते हैं उनकी लोकेशंस को स्टोर करके बनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इन 3D मॉडल्स के ऊपर लगते हैं टेक्सचर्स। यानी अगर तुमने किसी ह्यूमन का मॉडल लिया है तो उसकी ड्रेस और उसका चेहरा और ये सारी चीजें तो वो एक टेक्सचर फाइल होती है, इमेज फाइल होती है। सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि तुम उस इमेज फाइल को कंप्रेस कर दो। ऑनलाइन बहुत सारे इमेज कंप्रेसर्स होते हैं, उसकी हेल्प से तुम उन टेक्सचर फाइल्स को कंप्रेस कर दो। वो भी एक अच्छा तरीका होता है। और तीसरा तरीका है कि अगर तुम कोई और इमेज यूज कर तो उसका भी टेक्सचर साइजिंग कम कर दो। यही दो ही चीजें जनरली हम यूज करते हैं, या तो इमेजेस यूज करते हैं या तो 3D मॉडल। 3D मॉडल्स के हमें ट्रायंगल्स कम करने होते हैं तो ब्लेंडर में जाके हम एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा उस फीचर का, बट मैंने ट्राई किया काफी बार, तो उससे अराउंड 50% तक तुम्हारा साइज रिड्यूस होता है 3D मॉडल। और इमेजेस को तुम नॉर्मली कंप्रेस कर सकते हो, उसकी क्वालिटी डिग्रेड करके। कुछ सबसे आसान तरीका तो होता है व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके भी हो जाता है, बट और ठीक है। और कोई ओके सर, जैसे इसमें तो हम लोग अपने फेस वगैरह पे ऑगमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो हमारे वर्ल्ड मतलब हम लोग के सराउंडिंग्स में ऑगमेंट करते हैं, तो वो कैसे होता है? हाँ, तो इन लेंसेज को हम फेस लेंसेज कहते हैं और वो उन्हें वर्ड लेंसेज या 3D लेंसेज बोलते हैं। तो उसके लिए बता देता हूँ, एक बार मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने इसमें फेस के ऊपर ये सारे ऑगमेंटेशन किए थे, हम एक सेकेंड कैमरा को डिलीट कर देते हैं और तो जनरली हमारा कुछ इस तरह से शुरू होता है। हम क्या करेंगे, हम ऐड व्यू में जाएंगे और चलो इसको स्पार्क यार में देखते हैं। उस चीज को स्पार्क यार में वैसे भी दिखाने वाला था मैं। वो वर्ड लेंसेज जो होते हैं वो हमारे ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो हमारे एक्चुअल वर्ड में काम भी आ सकते हैं। कुछ फेस लेंसेज हमारे बिजनेस के लिए अच्छे हो सकते हैं क्योंकि लोग यूज करते हैं। तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो इन फेस लेंसेज को अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में यूज कर रहे हैं, तो उस तरह से फेस लेंसेज काम आते हैं। और अब तुम इस तरह से देख लो कि स्नैपचैट सिर्फ अपने लेंसेज के दम पे इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है और अब वो प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे बना रही है और उसके पास काफी इन्वेस्टमेंट्स भी आते रहते हैं। तो सर एक चीज और थी, बट जैसे स्नैपचैट सॉरी लेंसकार्ट के जो लेंसेज वगैरह होते हैं, जैसे वो लोग ट्राई ऑन और ये सब देते हैं, तो उसमें वो लोग क्या स्पेक्स के 3D मॉडल बना के रखते हैं या फिर वो PNG लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, उन लोग के 3D मॉडल्स होते हैं। 3D मॉडल्स को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। या तो तुम एक्चुअली जैसे 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं फ्रॉम स्क्रैच, जैसे हम पहले पेंट में ड्राइंग बनाते थे तो वैसे बना सकते हैं। बट जो वो टेक्निक्स यूज करते हैं उसको 3D स्कैनिंग बोलते हैं और उसके लिए बहुत ही प्रोफेशनल हार्डवेयर आते हैं जिनके हेल्प से कुछ स्टूडियो क्रिएट करते हैं और उसमें उनको स्कैन करते हैं। तो वो 3D मॉडल्स ही होते हैं, क्योंकि एक अगर हम इमेज भी यूज करेंगे तो इमेज ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल होती है। तो हम सिर्फ या तो चेहरे के आंखों के सामने ला सकते हैं उस चीज को, या तो आइस ईयर्स के साइड ला सकते हैं। तो वो 3D मॉडल्स ही होते हैं। और उस तरह से अब बहुत ही अच्छा एक स्कोप आया है। जो मेरी भी कल बात हो रही थी, ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं फ्रॉम IIT दिल्ली, उनका कॉल आया था। तो उन्होंने उन्होंने बताया था कि कॉलेज कैसे काम कर रहे हैं, जो ज्वेलरी को ऑगमेंट करने का काम करते हैं। तो जैसे अभी हम आइस पे कर रहे थे, तो उसी तरह से जो फीमेल्स के लिए ज्वेलरीज होती हैं, झुमके होते हैं या जितनी भी टाइप की ज्वेलरी होती है, तो उनको चेहरे पे दिखा सकते हैं सीधे कैमरे पे। और ये बन भी गया है, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। उसमें भी 3D मॉडल्स यूज होते हैं ऑब्वियसली। ओके सर। तो इस वाली चीज को हम करते हैं।
स्पार्क एआर पे वहां पे किए। सो अगर खुद के फिल्टर्स लगाने हो तो जैसे समझा नहीं मैं। इफेक्ट्स जो होते हैं, इमेज इफेक्ट्स जो होते हैं, अच्छा, जिस तरह से अभी ये एनालॉग वाला आया था ओल्ड, आरजीबी चेंज करके या हाँ उसका, वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। जैसे लाइट रूम में हम लोग स्पेशली करते हैं हाँ वो सारी वो। चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पोस्ट इफेक्ट ऐड किया था जो कि थोड़ा सा ओल्ड हमारा टेक्सचर देगा था न्यूज़पेपर टाइप। तो उस तरह से हम उसमें एक इफेक्ट है आरजीबी का भी, जिसमें हम ग्रेडियंट दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं। तो उस तरह से भी एक अलग से इफेक्ट डाल सकते हैं। हालांकि वो सिर्फ एडिशन हो सकता है, वो खुद का एक लेंस नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक एडिशन हो सकता है उस चीज पे। ठीक है, चलो अभी बस स्पार्क एआर पे भी देख लेते हैं। स्पार्क एआर में भी जैसे मैंने बताया टेम्पलेट्स पहले से बहुत सारी अवेलेबल हैं जिन्हें तुम यूज कर सकते हो अपनी चीजों को समझने के लिए। स्पार्क एआर पावरफुल उतना ज्यादा नहीं है लेकिन यूजर फ्रेंडली बहुत है। ठीक है, और चलो इसमें भी हम सबसे पहले सेगमेंटेशन वाली चीज को देखते हैं। तो हमने एक टेम्पलेट ओपन कर लिया, बैकग्राउंड टेम्पलेट नाम है इसका, और इसका काम वही होता है जो हम जनरली अभी तक करते आ रहे हैं अपने मीटिंग्स वगैरह में। हम अपना बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एक टेम्पलेट मैंने ओपन किया, तो अगर तुम सीन वाले पार्ट को देखो तो उसमें बहुत सारी चीजें पहले से एडेड हैं, और जितनी भी टेम्पलेट्स होती हैं बहुत यूजर फ्रेंडली होती है, तो उसमें चीजें पता होती हैं तुम्हें कि कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं। जैसे इसमें एक यूजर नाम से एक इमेज है और एक बैकग्राउंड नाम से इमेज है, तो बहुत ऑब्वियस है कि बैकग्राउंड में हम चेंजेस करेंगे तो बैकग्राउंड इमेज में हो जाएंगे। राइट, तो एक काम करते हैं, एक इमेज लेके आते हैं। इसमें पहले से एक इमेज तैयार रखी है स्पेस से रिलेटेड, उसको हम ड्रैग करेंगे एंड अपने रिसोर्सेज एरिया में ड्रॉप कर देंगे। इसमें हम डायरेक्टली टेक्सचर नहीं लगा सकते, हमें एक मटेरियल बनाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड मैट नाम से अगर तुम एसेट्स एरिया में देखो तो एक बैकग्राउंड मैट नाम से एक मटेरियल पहले से अवेलेबल है। मटेरियल्स क्या होते हैं कि तुमने कोई इमेज ली और तुम उस इमेज को किसी 3D मॉडल के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, या फिर उसको कहीं भी एक्सपैंड करना चाहते हो, यानी वो रिपीटेड चीजें चढ़ती रहे, तो उसके लिए तो मटेरियल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस बैकग्राउंड मैप को सिलेक्ट करेंगे और इसके टेक्सचर वाले पैनल, इंस्पेक्टर पैनल में इसके टेक्सचर को चेंज करके जो हमने अभी इमेज लाए हैं उसको चेंज कर देंगे। इट तो इस तरह से टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हैं। बहुत इजी काम होता है टेम्पलेट्स को एडिट करना। हालांकि टेम्पलेट्स को एडिट करना अच्छी चीज नहीं है क्योंकि तुम ऐप के फीचर्स वगैरह को समझ नहीं पाओगे। तो अब हम एक नया प्रोजेक्ट तैयार करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। एक बार मैं कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। स्पार्क एआर का बहुत एक अच्छा फायदा है कि इसमें पैच एडिटर होता है। पैच एडिटर क्या काम करता है वो भी दिखाएंगे। उससे तुमको कुछ भी कोड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सिर्फ पैचेस को जोड़ जोड़ के, यानी कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे उनको जोड़ जोड़ के अपना पूरा लेंस बना सकते हो। सिस्टम है मेरा, समय आ गया है सिस्टम को बदलने का। अच्छा, मैंने वहाँ को वीडियो ऑन कर रखा है। सो वर्किंग, और इससे बेटर काम करेगा जब हम ऐप में यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम इसको कैसे यूज करना है वो सीखेंगे। लास्ट प्रोजेक्ट को यूज कर देते हैं। सो एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में अगर तुम सीट पैनल में देखो तो बहुत कुछ चीजें हैं जो कि बहुत बेसिक होती हैं। कैमरा जो तुम्हारा डिवाइस को रेप्लिकेट करता है, यानी एक डिवाइस है जिसके तुम देख रहे हो। माइक्रोफोन है जो तुम्हारे ऑडियो को लेना चाहता है, अगर तुम ऑडियो अपने लेंसेज में लेना चाहो, जैसे रोबोटिक वॉइस बनाने के काम आता है। वैसे फोकल डिस्टेंस, एम्बिएंट लाइट, डायरेक्शन लाइट, ये तुम्हारे सीन में लाइट्स लाने के काम आता है। अब क्या करेंगे हम, जैसे उसमें न्यू ऑब्जेक्ट था, जैसे इसमें ऐड ऑब्जेक्ट बटन है उस पर क्लिक करेंगे एंड फेस मैश ऐड करते हैं। अच्छा, 3D मॉडल वाली चीज भी तुम्हें दिखा देते हैं इसके बाद। तो सबसे पहले वही दिखा देते हैं, हो सकता है बाद में हमारे पास टाइम ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें वर्ड लेंस बनाना है यानी दुनिया में कुछ रखना है, तो उसके लिए हमें एक प्लेन ट्रैकर होना चाहिए। प्लेन ट्रैकर का मतलब जो जमीन को ट्रैक करे।
ठीक है। तो हमने एक प्लेन ट्रैकर ऐड किया, ऐड न्यू पे जाके प्लेन ट्रैकर, ठीक है। ये प्लस ऑफ साइन तुम देख रहे हो, प्लस साइन जो है वो हमारा प्लेन ट्रैकर है, राइट। अब प्लेन ट्रैकर का मतलब ये हमारी जमीन है, ठीक है, और इस जमीन पे हम चीजों को रखने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें हमें पहले से इंप्लीमेंटेड मिलती हैं। और ये जो तुम्हें यहाँ पे हमारे फोन का सिमुलेशन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करके इसको रोटेशनल मूव भी कर सकते हैं। तो अगर हम फोन के चारों तरफ देखना चाहें तो उसमें हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे और चीजें मूव होगी। WASD से मूव भी कर सकते हैं, जैसे हम GTA में करते थे, ठीक है। आप एक 3D मॉडल लेके आते हैं। तो मेरे पास एक 3D मॉडल है गणेशा की आइडल का, उसे ड्रैग करके लाते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे एसेट्स में, आ गया। और इसके 3D मॉडल वाले पैक को हम ड्रैग करके प्लेन ट्रैकर के ऊपर ड्रॉप करेंगे। ध्यान रखना कि इसको नीचे नहीं ड्रॉप करना है, जस्ट प्लेन ट्रैकर के ऊपर ड्रॉप करना है ताकि वो प्लेन ट्रैकर के करंट गिरे आपके, ठीक है। तो जूम आउट करके देखते हैं, ये 3D मॉडल हमारा आ चुका है। इसको रोटेट करते हैं। सबसे पहले तो रोटेशन टूल लेके इसको सही अलाइन कर देते हैं ताकि चीजें दिखें, और इसको स्केल डाउन करते हैं थोड़ा सा। अब ठीक है, तो ये हमारा एक 3D मॉडल आ गया है। और अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो हमारी जैसे जमीन पे जैसे ही जमीन ट्रैक करेगा उसके ऊपर इसको रखेगा, ठीक है। और इसमें हम मूव करके इसके आसपास जाके भी देख सकते हैं WASD से, तो इतना ही बड़ा आ जाएगा। सो ठीक है, अब ये हमारा 3D मॉडल आ गया। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस पर एक एनिमेशन बनाना है, ये ग्रो करे यानी छोटे से बड़ा हो, वो एनिमेशन बनाना है। तो यूनिटी में थोड़ा और आसान होता है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या करेंगे, हम व्यू में जाएंगे और शो पैच एडिटर करेंगे। तो ये हमारा पैच एडिटर ओपन हो गया है, ठीक है। बिल्कुल एक ग्राफिक टैबलेट जैसा दिखता है, यानी बीच बीच में डॉट्स है। इस पैच एडिटर पे हम छोटे छोटे बॉक्सेस लाएंगे और उनको जोड़ के अपना काम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किस चीज को हमें चेंज करना है, इस गणेश आइडल के साइज को, यानी उसकी स्केल को, ठीक है। तो जो तुम यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल में देखो, स्केल लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में, और उसके बगल में एक एरो बना हुआ है। हम उस एरो पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे हमारे पैच एडिटर में ऐड हो गया, ठीक है। यानी अब हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, ये हमारा स्केल ऐड हो गया है। अभी स्केल क्या है, 111, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, ये 000 से 111 तक जाए, यानी 0 स्केल से लेके 1 स्केल तक बड़ा हो, ठीक है। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, पैच एडिटर पे राइट क्लिक करो, ठीक है। तुम्हें सारे ऑप्शन दिख सकते हैं कि तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो। जैसे अभी तक उसमें हम आईब्रो वाली चीजें कर रहे थे, ये यहाँ पे इंटरेक्शन पैनल में तुम्हें दिखेंगी, आईब्रो लोअर, आईब्रो रेस, हैप्पी फेस, हैप्पी नॉट, हेड नॉट सॉरी, हेड रोटेशन, हेड शेक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक है। इन चीजों को ट्रैक कर सकते हो। जो मशीन लर्निंग वाले लोग हैं उनके लिए काम का इसमें चीज़ ये है कि तुम इसमें मैथमेटिक्स वाली चीजें भी थोड़ी बहुत कर सकते हो, जो कि मुझे नहीं आती, तो तुम लोग मुझे बता देना बाद में क्या होती है, ठीक है। इंटरेक्शंस हैं, ये सब चीजें, ठीक है। बट हमें क्या करना है, मैं एनिमेशन यूज करना, तो हमने एनिमेशन पे गए और एनिमेशन में सबसे पहले हमने लिया लूप एनिमेशन। लूप एनिमेशन का मतलब वो लूप हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। लूप एनिमेशन लिया हमने, एंटर दबा दिया तो लूप एनिमेशन ऐड हो गया, ठीक है। देख रहे हो एक छोटा सा पैच आ गया, ये एक पैच है, इन सारे पैचेस में एरो हैं, इनको हम ऐसे वायर से जोड़ेंगे और काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या कह रहा है कि हमें प्रोग्रेस आउटपुट दे रहा है। इस पर अगर हम गौर करेंगे तो हम क्या करते हैं, एनिमेशन में जाके एक और चीज ऐड करेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेस, सॉरी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमने ऐड किया, ठीक है। ट्रांजिशन में इनपुट क्या है, प्रोग्रेस, इसमें आउटपुट क्या है, प्रोग्रेस। दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे से वैल्यू निकल ली है, इस वैल्यू को हम इसमें इनपुट दे देंगे और हमारा काम हो गया। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा लूप एनिमेशन है ये अभी इनेबल्ड है और इसकी ड्यूरेशन 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में काम कर रहा है। इस ड्यूरेशन को चलो कर देते हैं 10 सेकेंड, तो धीरे से बड़ा होगा, ठीक है। बहुत बेसिक एनिमेशन है, इससे और अच्छी एनिमेशन से कर सकते हो, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, ये एक प्रोग्रेस हमें दे रहा है 0 से लेके 1 तक, यानी 0 से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 पे जाता है, ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर। और इस प्रोग्रेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारी वैल्यू से, ठीक है। तो स्टार्ट 0 से होता है, वो जाता है एंड 1 तक, और इसी वैल्यू को हम इनपुट दे रहे हैं अपने स्केल में,
ठीक है, तो ये बहुत बेसिक एनिमेशन हो गया। इस तरह से तुम 3D मॉडल्स को ऐड कर सकते हो और ऐसे चीजें कर सकते हो। अब तुम इसमें कुछ फेस वाली चीजें जैसे अभी हमने उसमें की थी वो भी कर सकते हैं कि हमने एक एनिमेशन वगैरह लगा दिया और अपने चेहरे पे कुछ फेस फिल्टर्स लगा लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि तुम लोग को अंदाजा लग जाए कि इसमें चीजें कैसे होती हैं। हमने प्लेन ट्रैकर को डिलीट कर दिया, नॉर्मल फेस वाले पे आ गए। ठीक है, पैच एरिया को छोटा कर देते हैं, ऐड ऑब्जेक्ट में गए और फेस मैश है उसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया। ओके, ये एक पूरी फेस मैश है, यानी पूरे पूरे चेहरे पे हमारे ये एक मैश की तरह ऐड हो जाता है। ठीक है, एक बार कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ इफ पॉसिबल। हाँ, ठीक है, तो एक पूरे चेहरे पे एक मैश की तरह ऐड हो गई है और इसको हम कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी आईपीएल टीम का अगर कोई लोगो है तो वो लगा सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम इंटरेक्शन से इनेबल और डिसेबल करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो चेहरा मेरा छोटा कर दो जैसे, पैज एडिटर में गए, इंटरेक्शंस में गए और सबसे पहले तो हम सबसे पहले फेस पे जाएंगे, सर्च करेंगे फेस में और हमें एक फेस फाइंडर चाहिए जो फेस फाइंड कर पाए। ठीक है, तो एक फेस फाइंडर ऐड हो गया। फेस फाइंडर क्या करता है, फेसेस की लिस्ट देता है। ठीक है, फिर से राइट राइट क्लिक करने से लिस्ट आ रही है जो तुम्हें दिख रही है। ठीक है, फिर से हम फेस सर्च करेंगे और हम इसमें से लेंगे फेस सेलेक्ट। ठीक है, फेस सेलेक्ट का मतलब होता है फेसेस की लिस्ट जो है उसमें से एक फेस सेलेक्ट करने के लिए। तो इन फेसेस की लिस्ट को हमने यहाँ पे इनपुट दिया फेस सेलेक्ट में। फेस सेलेक्ट हमें एक फेस देगा, उस फेस को हम कहाँ यूज करेंगे, इंटरेक्शन में। इंटरेक्शन में क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चलो ठीक है, आईब्रो रेज लेते हैं। ठीक है, आईब्रो रेज किया है। ठीक है, आईब्रो रेज में अगर तुम देखो तो इनपुट हमें चाहिए फेस, इसका आउटपुट फेस है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो हमें एक मिल गया कि फेस फाइंडर ने हमें फेसेस दिए, उन फेसेस को हमने फेस सेलेक्ट को दिया। फेस सेलेक्ट ने हमें इंडेक्स 0 वाला फेस जो है वो सेलेक्ट करके दिया, उसको हमने आईब्रो रेज इंटरेक्शन को दिया। और अब हम फाइनल अपना काम करेंगे जो जो कि है हमारा इस फेस मैश को इनेबल करना है। ठीक है, तो इसको हम शुरू में कर देते हैं विजिबल ऑफ। यहाँ पे देखो सेटिंग्स में, और इसके आगे एक एरो बना है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ से यहाँ कनेक्शन करके। ठीक है, आगे देखना। ठीक है, आईब्रो जब तक रेज रहेगा तब तक मेरा फेस पे मास्क रहेगा, आईब्रो डाउन हुआ नॉर्मल गया। ठीक है, तो इसमें हमें और वो स्क्रिप्ट वाली चीज नहीं करनी पड़ी, ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है। इसमें हमने सीधे एक पैचेस को जोड़ जोड़ के वो सारा काम कर लिया जो हमको वैसे करना पड़ रहा था। ठीक है, सो आई थिंक हमारा हैंडसम सेशन हम यही एंड करते हैं और इसके बाद अब तुम लोग की तरफ से कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो उसको लेते हैं। और अगर कोई क्वेरीज इस पे आती है तो तुम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो यार, हम कोई स्पीकर वगैरह नहीं है। ओके, सो ऑन दैट नोट हमारा हैंडसम सेशन ओवर होता है। तुम लोग के कुछ क्वेश्चंस में एक बार चैट पढ़ लेता हूँ क्वेश्चंस को। क्या कोई बोलना चाहे, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहे तो पूछ लो जल्दी से, रिलेटेड टू एनीथिंग। हो सकता है स्नैपचैट या एआर से रिलेटेड हो या फिर जनरल भी हो। एनीवन? आई थिंक फिर तुम लोग मुझे क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो तुम लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑन दैट नोट आज का सेशन एंड करते हैं। कोशिश की थी मैंने कि जितना ज़्यादा फन हो सके और जितना जल्दी हम समअप कर सकें सारी चीज़ों को, तो वो किया है। और थोड़ा अट्रैक्टिव होती हैं सारी चीज़ें। और वीकेंड आर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से अटेंड किए सारे, इस वाले में भी काफ़ी लोग आए हो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड आई होप कि तुम्हें कुछ आज अच्छा सीखने को मिला हो। So, नमस्ते। yeah, thank you everyone for नमस्कार। attending today's session on Weekend Hour. We hope you have enjoyed the session and learned something new. So, I am rolling the feedback form in the chat. Please fill it. And as our Weekend Hour ending ritual, I'll request everyone to please turn on their cameras so that we can have a snapshot of it. मैं फिल्टर लगा लेता हूँ एक सेकेंड। लोग पहचान नहीं पाएंगे कि बुलाया तो आकाश पासी को था, पहुंच कौन गया।
Normally, Please turn on your cameras if possible. Thank you guys and thanks a lot sir. It was a great session from your side. And किसी को कोई doubt हो तो sir को directly contact कर सकता है. I hope everyone has this number. Thank you. थैंक यू सर, thank you. बढ़िया से थैंक यू everyone. थैंक अच्छा था। यू सर। अभी तुम लोग से पर्सनली भी रिव्यू लेंगे हम। सर आयरन मैन का केमियो था आपके सेशन में, और क्या चाहिए? अरे मोदी जी भी आए थे, तुमने उन्हें नोटिस नहीं किया? सर आयरन मैन है वो। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक कोशिश की थी, अच्छा एंजॉयबल सेशन रहे। थोड़ा सा आजकल हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठे बैठे वीडियो देखते रहते परेशान हो रखे हैं। पूरा क्लासेस भी वही हो रही हैं, एक स्क्रीन के सामने बैठे बैठे।